ہمارے ساتھ خیر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب. السلام علیکم سہیل بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ملک بھائی، جبران بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے وقت کے. ابھی تو جو لائیو چل رہا ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ اڈیالہ میں کیا چل رہا ہے. ہم نے سنا تھا کہ آپ شاید اڈیالہ جانے والے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، اور پھر ہم اس کے علاوہ 26 نومبر کو بات کرتے ہیں ذرا پلیز. اچھا، ابھی کچھ دیر پہلے جب مجھے پتا چلا کہ علیم آپا جو ہیں ایک دفعہ پھر اس کو نہیں چھوڑا گیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں پر جاؤں اور ان کے ساتھ جو ہیں وہاں پر اڈیالہ جیل کے سامنے اظہار یکجہتی کروں. لیکن جیسے ہی میں کے پی ہاؤس سے نکلنے والا تھا تو مجھے اطلاع آئی کہ تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور مزید نفری جو ہیں وہ بلا دی گئی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ وہ کوئی وہاں پر ان کا ارادہ ہے فالس فلیگ آپریشن کا. تو اس وجہ سے جو ہے میں رک گیا، نہیں گیا. اور ابھی جو ہے مجھے اطلاع ابھی تک آ رہی ہے کہ تمام راستے ابھی تک بند ہیں، انہوں نے بند کیے ہوئے. جس کو اگر میٹنگ کا آج کوئی بھی چانس نہیں ہے لگتا ہے ایسے؟ نہیں، وہ نہیں کروا رہے، میٹنگ نہیں کروا رہے. اور یہ جو ہیں کلی فستائیت کر رہے ہیں. اور پچھلے منگل کو جو ہوا اور ہمارے لیڈر کی بہنوں کے ساتھ، تو یہ شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ووٹ کو عزت دو اور عورت کارڈ جو مسلسل کھیلتے آ رہے ہیں پاکستان میں. تو پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور وہ عورتیں جو غیر سیاسی ہیں، جو صرف اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہی ہیں، وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہ رہی، وہاں جلسہ نہیں کرنا چاہ رہی یا احتجاج نہیں کرنا چاہ رہی، صرف جو ہے اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہی ہیں تاکہ ان کی صحت دریافت کرے کہ ان کی صحت کیسی ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کے لیے جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو یہ حکومت ساری عمر نہیں رہنی، یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو پھر جو ہے کسی کو نہ ہی عورت کارڈ کھیلنے دیا جائے گا اور نہ ہی جو ہے آئین اور قانون سے کوئی مبرا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی آئینی اور قانونی طریقے سے ان کا حساب ہوگا انشاءاللہ. کافی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ ایک جب سے آپ آئے ایز سی ایم، کافی ایک فارورڈ لوگوں کا بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور دن بدن یعنی کہ آپ کہیں ٹریفک میں بھی پھنسے ہوتے ہیں تو وہاں بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ عمران خان کا سپاہی جا رہا ہے. تو ایک جب اتنی زیادہ شہرت ملتی ہے، اتنی زیادہ آپ کو وہ پذیرائی ملتی ہے، تو وہاں پر جیسے ایکسپیکٹیشنز بھی بہت بڑھ جاتی ہیں. تو اس پہ میں آتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ان کا انجام آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو سارے اتنے ظالم اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ کوئی ٹائم لائن آپ کے پاس ہے کہ یہ ظلم کتنا کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ضیاء الحق بھی کوئی 10 کے اوپر سال رہ گیا تھا، یہ فیلڈ مارشل نے اپنی وہ فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے، اس کا بھی پلان ہے اتنا ہی لمبا. تو آپ یہ ٹائم لائن کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں گے کیا لائے عمل ہوگا، لیکن میں بس آپ سے ایک ایز اے آبزرور، ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں جاننا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا ظلم کر لیا ہے، کتنا کر سکتے ہیں، اور کیا ٹائم لائن ان کی کیا دکھ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، ظلم تو جتنا یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، اور یہ ظلم کے آخری حدیں بھی پار کر چکے ہیں. تو جب اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سویرا ہی آنے والا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ظلم کا دور اور یہ ان ظالموں کی حکومت میرے خیال میں کچھ ہی پل کے مہمان ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سرخرو کرے گا. اور پاکستان میں حقیقی آزادی کی تحریک جو میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے شروع کی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بہت جلد آنے والی ہے، پہلی بات. دوسری بات، ہماری جتنی بھی شہرت ہے یہاں پر، ہمارے ہم سے لوگ اگر پیار کرتے ہیں تو یہ لوگوں کا پیار صرف اور صرف عمران خان کے لیے ہے، اور ہم عمران خان سے وفا کر رہے ہیں. اس وجہ سے لوگ جو ہیں ہمیں عزت بھی دے رہے ہیں، ہم سے پیار بھی کر رہے ہیں. اور تمام لوگوں کو جن کی عزت عمران خان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، تو ان کے جو ہے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس دن عمران خان کا ہاتھ ان کے سر سے اٹھ گیا تو ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو عزت دی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ہے اس قوم کا، اس ملک کا مقدمہ لڑا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ.
अच्छा सुहेल भाई, एक मुझे बताएं, जब भी आप लोगों से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं, आपने मीडिया इंटरेक्शंस की, सब कुछ किया, ये लोगों का सबसे जो कॉमन सवाल है वो आपसे क्या होता है? और फिर ये जो कह सकते हैं जो मीडिया में जो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड भी हों शायद लोगों से, उनका क्या सवाल होता है? तो पहला सवाल ये कि लोग आपसे सबसे पहला सवाल क्या करते हैं जब आपसे मिलते हैं? मीडिया के लोग जो नहीं, सबसे पहले कॉमन लोग जो आपसे मिलते हैं उसका बताएं, फिर मीडिया के लोग का बताएं। तो मैं जानना लोग चाहता हूँ तो कि दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, कॉमन लोग तो सिर्फ और सिर्फ जो है सच्ची बात यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं और उसके लिए जो है लायामल का डिमांड जो है उनका होता है। तो वो लोगों का जो इश्क है, अभी हमने इलेक्शन जीता ना, इससे पहले ना जो है हम वहां पर कभी गए हैं, ना उन लोगों से मिले हैं, ना ही वहां पर हमने रोड बनाई है, ना ट्रांसफार्मर लोगों को दिए हैं, ना वहां पर जो है हमने कोई मेगा प्रोजेक्ट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों ने वोट दिया और हमें कामयाब किया, तो सिर्फ एक ही वजह से, जो इमरान खान का मौकफ है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है, उसी वजह से हमें वोट मिला है। तो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान को चाहते हैं, और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में लोग जो है एक ही डिमांड है, इमरान खान साहब की रिहाई। और उन्होंने पूछा कि जो मीडिया वाले क्या सवाल करते हैं, वो वाला क्वेश्चन रह गया। ये तो आम लोग सवाल करते हैं, तो मीडिया वाले क्या सबसे ज्यादा सवाल कौन सा होता है? अच्छा, मीडिया वाले जो हैं वो ज्यादातर हमारे सहाफ़ी बरादरी जो है वो ये एक ही बात कहते हैं कि वहाँ पर जो है गवर्नेंस और वहाँ पर जो सूबाई इशू हैं उन पर सवाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब 2018 से 2022 तक वज़ीर आज़म रहा, और जिस तरह पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी कोविड में, तो मेरे लीडर ने जो है उनके अपोजिट फैसला किया कि उसने स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में लगाना है। और वो स्मार्ट लॉकडाउन उसने दुनिया को दिखाया कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स अपने कौम, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, तो उसके भी अच्छे असरात नजर आते हैं। 1.5 साल, तकरीबन उनके 3.5 साल में 1.5 साल कोविड रहा, पूरी दुनिया बंद रही, उसके बावजूद भी जो है हमारे तमाम पाकिस्तान के इंडिकेटर्स, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो पॉजिटिव रहे। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो ज्यादा था, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो कम हुआ, रिजर्व ज्यादा हुए थे। ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने ही किए थे। तो वो एक विजनरी लीडर है। तो मैं चाहता हूं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के हवाले से, वहाँ के मईशत के हवाले से, वहाँ के डेवलपमेंट के हवाले से अपने लीडर, अपने कायद से जो है वो पॉलिसी गाइडलाइन लूँ, क्योंकि उसकी मुतारिफ पूरी दुनिया है। तो अगर फर्ज करें मैं उनसे मिलूंगा तो इंशाल्लाह वो मुझे अच्छे आइडियाज देंगे जो मैं वहाँ इम्प्लीमेंट करूंगा और उसके साथ ही आगे बढ़ूंगा। अच्छा, अच्छा, अली कोई सवाल? जी अली पूछो। जी। अच्छा, अब जरा आज के उस पर आ जाते हैं, 26 नवंबर 2024 को जिस तरह से रियासत ने किया, एक ही सूबा जहां पर हुकूमत है, मसाइल बहुत ज्यादा हैं सुहेल भाई आपके लिए, और आपसे पहले वाले वज़ीर आला के लिए भी थे, आपके लिए भी हैं। सूबों में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। हमने देखा कि आप जल्दे में भी जा रहे हैं, हमने देखा कि आप लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, दहशतगर्दी का भी सामना है, और फिर एक ऐसी पॉलिटिक्स का भी सामना है जहां पर मिलिट्री कस्टडी में बहुत ज्यादा लोग हैं। इमरान खान खुद जेल में है, उनकी अहलिया जेल में है, टॉप टियर लीडरशिप जेल में है। अब इन तमाम चीजों पर मैं ये तो नहीं पूछ सकता कि पूरे का पूरा लाहे अमल क्या है, लेकिन हाउ डू यू हैंडल ऑल ऑफ दिस, बिकॉज देयर इज, मतलब जितना प्रेशर शायद आप पर है, मुझे नहीं लगता कि किसी और पर होगा। तो इसको अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो प्रायोरिटाइज किस तरह करेंगे? और कल उसके बाद जो है हयाताबाद के बारे में हम बात करेंगे, जो कल आपसे करने जा रहे हैं। देखिए जी, ये सारी चीज़ें जो हैं, बर्डन हकीकत है कि बहुत ज़्यादा है, और जो सूबे के अंदर प्रेशर है और जो सूबे से बाहर मुख्तलिफ इदारों का प्रेशर है, प्रेशर तो खैर मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जो है रास्ते से हटाए मुख्तलिफ तरीकों से। लेकिन उनको अलहदा डील करना, फिर सूबे के जो मामलात हैं उनको अलहदा डील करना, तो ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और हमें जो है इमरान खान साहब ने ट्रेनिंग दी हुई है, तो इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल को हम प्रायोरिटी बेसिस पर जो सूबे के गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के मसाइल हैं उनको भी देख रहे हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं मिलिट्री के, जिन पर जो है किसी पर 5 साल, 10 साल, 7 साल, तो उनको भी देख रहे हैं। हमारे जो शोहदा की फैमिलीज हैं उनको भी देख रहे हैं। जो हमारे प्रिजनर्स हैं, तकरीबन 7,500 से ज्यादा, मुख्तलिफ 5 अक्टूबर के, 9 मई के और ये 26 अक्टूबर के, सितंबर के जितने भी कैदी हैं उनका भी देख रहे हैं।
तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जो हैं क्योंकि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की तवक्को हैं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके तवक्कुआत पर पूरा उतरूँ इंशाल्लाह। के हवाले से जो कि रियासत ने जो किया, जो हमने देखा कि निहत्थे शहरियों के ऊपर, कभी सोचा था कि ऐसे गोलियां चला दी जाएंगी, स्नाइपर से सामने से गोलियां चलाई जाएंगी, झूठे मुकदमात बनाए जाएंगे? आप शायद जानते होंगे यकीनन कि जो लोग जख्मी हुए उनको अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं फराहम की गई, कि अस्पतालों को कह दिया गया था कि जो इस्लामाबाद में जहाँ से जो लोग आए हैं उनको नहीं ट्रीट करना। इतना बुरा हाल अगर कोई ऐसा महकमा कर ले, इसका मतलब कैसे आगे बढ़ा जा सकेगा इसमें? देखिए जी मलिक भाई, मैं परसों भी जो पिछली दफ़ा मैं अटियाला जेल गया था, तो वहाँ हमारी सहाफ़ी बरादरी जो थी उनको मैं यही कह रहा था कि देखें, ये एक बयानिया बनाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाजी सियासत करती है और XYZ जो है इसी तरफ वो जो बयानिया बनाते हैं। तो मैंने कहा कि देखें, जब मैं वज़ीर आला बना, वज़ीर आज़म साहब की मुझे कॉल आई, मैंने उनको कहा कि मतलब मुझे अपने लीडर से मिलने दें, तो उन्होंने वो नहीं मिलवा पाए मुझे। उसके बाद जो है मैंने सूबाई हुकूमत पंजाब की जो हमारी जाली हुकूमत है, लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी जो है कोशिश की कि उनके थोड़ा बहुत जो है वहाँ इख्तियार होगा, उनको लेटर किया कि मुझे मिलने दे। वज़ीर आज़म साहब को लेटर लिखे। उसके बाद जो है मैं चीफ जस्टिस साहब को मैंने लेटर लिखा। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, 3 जजेस के ऑर्डर्स लेके गया, उसके बावजूद जो है मेरी मुलाकात नहीं होने दी। मैंने 3 दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने की कोशिश की ताकि मेरी बात हो पाए। वो मुझसे उन्होंने बात नहीं की। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास गया, 1.5 घंटा मैंने इंतज़ार किया ताकि मेरी मुलाकात जो है वो उसका कुछ करें और अपने अहकामात मनवाएं पुलिस से और मुझे जो है मिलने दें। लेकिन 1.5 घंटा इंतजार के बाद भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझसे नहीं मिले। फिर मैंने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से करारदाद पास की, कौमी असम्बली से करारदाद पास की, तो जितनी भी जमहूरी रास्ते थे वो मैंने अपनाए। तो वो सहाफ़ी बरादरी से मैंने कहा कि अभी आप बताएं कि मेरे पास जो है आखिरी हल क्या बचता है। तो वो जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर जवाब होता तो फिर ये एक ही जवाब है कि इसके बाद जो है एहतजाज का रास्ता ही हमारे पास आखिरी रास्ता बचता है। और मैंने कहा अगर ये रास्ता नहीं है तो फिर आप मुझे बताएं कि आखिरी रास्ता क्या है। तो 26 नवंबर को हम यही अपना, क्योंकि अदालत हमें इंसाफ नहीं दे रही थी, हमारा लीडर जो है नाहक कैद में है, उस पर उसने कोई करप्शन नहीं की, उसने कोई जो है पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं की, उसने सिर्फ हक और सच और पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की बात की थी। तो इस वजह से जो है जो बाहर की ताकत है उनको पसंद नहीं आया और उनको जो है हुकूमत से हटा दिया, रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया। अभी वो नाहक जेल में है। तो हम अपना आईनी और कानूनी हक समझकर इस्लामाबाद का रुख कर रहे थे ताकि हम एहतजाज करें और अदालतों से हमें इंसाफ मिले। अच्छा, उस वक्त तक जब तक जो है वो हमने वो खून अपनी आंखों से नहीं देखा था, हमने अपने शोहदा अपनी आंखों से नहीं देखे थे, वो लोग जो मतलब पुरअमन वहां पर खड़े थे, स्नाइपर से उनके सर खोले गए, तब तक हमें ये अंदाजा नहीं था कि रियासत जो है वो इस्लामाबाद में भी, खैर कबायली अजला में तो हम ये होता देख रहे थे, 2004 से देखते आ रहे थे, लेकिन कम से कम इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है उसमें हम ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि रियासत हम पर गोलियां चलाएंगी। उस वक्त जो है हमें अंदाजा लगा कि रियासत जो है, जो माँ होती थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डायन बन चुकी है और वो गोली भी चला सकती है। और जो वहां पर हमने खून खराबा देखा, हमने अपने जख्मी देखे, उसके बाद जब अस्पतालों में गए और रियासत का रवैया वहां पर देखा, हमें अपने शहीद नहीं दे रहे थे जब तक वो स्टाम्प पेपर लिख ना देते कि मतलब हम कोई FIR नहीं करेंगे या जो है अदालतों में नहीं जाएंगे। जब स्टाम्प लिखवाए गए उसके बाद जो है शोहदा हमारे हवाले किए गए, उनके लवाकिन के हवाले किए गए और जख्मी जो है उनका इलाज नहीं किया गया वहां पर। तो ये तमाम तर फस्तायत और जबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख चुकी है। अच्छा, हम जो है 9 अप्रैल 2022 से लेकर आप अब तक मतलब 3.5 साल तकरीबन होने को है और हम ये फस्तायत देख रहे हैं। और मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान के चाहने वालों को कि मुसलसल
3.5 साल जबर, फस्तायत, जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और अभी जो है मैं एक पोजीशन पर जब आ गया हूं तो पूरे पाकिस्तान से लोग राब्ता कर रहे हैं, और अभी का जुनून और जज्बा और जोश जो मैं देख रहा हूं तो मैंने वो पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। अभी भी जो है लोग चाह रहे हैं कि एक मूवमेंट चले और बेहतरीन किस्म का मूवमेंट चले। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए तगो-दो जारी है, और ये गोलियां जो है ना हमें डरा सकती हैं ना हमें दबा सकती हैं। हमारे सीने हाजिर हैं, इनकी गोलियां खत्म हो जाएगी लेकिन पाकिस्तानियों के सीने खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, और हम जो है एक दफा फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सोहेल भाई, ये जब आपने पोजीशन जब ली थी शायद, अच्छा काफी लोग आपको ना एक जैसे किसी बच्चे को दे दी, यू नो कि आप बहुत यंग हैं, तो थोड़ा सा अब लोगों को पता चल रहा है कि आप में पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है, आप कितने समझदार हैं, और कितना मतलब उन्होंने जितना सोचा था, मतलब वो यू नो स्ट्रीट लैंग्वेज में कहते हैं ये तो बाप निकला, मतलब ये तो बहुत जिरगे करा रहा है, मतलब पॉलिटिकल चीखें उनकी बता रही हैं कि हाँ बड़ी निकली हैं। तो मुझे ये बताएं कि मतलब आप थोड़ा सा बताएं जो पहली बार आपको यहाँ सुन रहे हैं, और काफी जब से आप आए लाइव स्ट्रीम पे, मतलब हजारों की तादाद में बढ़ रहे हैं, और हर सेकंड में मैं बता रहा हूँ कि 50 लोग बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं काउंटर देख रहा हूँ, अभी 1 सेकंड में कोई 100 लोग बढ़े। तो ये जो नए लोग आपको देख रहे हैं पहली बार, थोड़ा सा बताएंगे आपका सफर ये तरीके इंसाफ में, और फिर 1-2 बड़े टफ सवालात आपसे पूछूंगा, उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे, ठीक है? तो पहले थोड़ा सा लोगों को बताएं कि आप हैं कौन, कैसे आए इतना, और कैसे इमरान खान ने आपको कैसे पिक किया, और ये थोड़ा सा सफर बताएं कि अच्छा, ये वज़ीराला वाला सफर या जो नहीं है नहीं अपनी पूरा political ओवरऑल struggle? शुरू अच्छा से PTI में। अच्छा, ये इमरान खान साहब, क्योंकि मुझे क्रिकेट से बहुत मैं शौक से देखता था और खेलता भी था। तो 1999 का वर्ल्ड कप जो है वो हम हारे, तो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी। तो मैं रो रहा था क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप हारा था। और तो फिर मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम एक वर्ल्ड कप जीत भी चुके हैं, और उस वक्त VCR थी तो उसके ने बहाने में कि वर्ल्ड कप की वो कैसेट मुझे दी, और मैंने वो वर्ल्ड कप देखा। तो तब से जो है मैं इमरान खान साहब का फैन तब से बना था। फिर उम्र के साथ साथ जो है मैं उनको फॉलो करता था, उनके जो तमाम चीजें हैं, जो सोशल स्ट्रगल हैं, जो पाकिस्तान के लिए कोशिशें थी, तो वो मैं देख रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल का मदा बना, और फिर 2007 में प्रैक्टिकली इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा बना। 14 नवंबर 2007 को जब मुशर्रफ ने कुछ गुंडे भेजे और इमरान खान साहब को पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी बेइज्जती की गई, और उनको गिरवान से पकड़ा। तो फिर मेरी जिंदगी का पहला प्रोटेस्ट जो है वो 14 नवंबर 2007 को था। उस वक्त आपकी एज क्या थी? उस वक्त आप कितने साल का थे? मैं 2007 में 18 साल का तकरीबन था। तो 18 साल में आप वो मूवमेंट में, ठीक है? हाँ यानी जी। कि शनाख्ती कार्ड बनती है, आपने पहला प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। नहीं, तब शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था। तो हाँ, 14 नवंबर 2007 को मैंने प्रैक्टिकल जो है वो प्रोटेस्ट की, और हमें बहुत मार पड़ी क्योंकि वो वहां पर कैंट का एरिया था और आर्मी थी सारी। तो उस वक्त से जो है हम पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए मार कर रहे हैं, और अभी तक जो है वो सिलसिला जारी है, और इंशाल्लाह ये रुकेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैं 2008 में मुराद सईद भाई से मिला, मीना खान भाई से मिला। मैं मीना खान क्लास फेलो थे, मुराद सईद साहब जो है हमारे सूबाई सदर थे। तो वो जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स मतलब ओहदा लिया, तो वो मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी में लिया, और वो पेशावर यूनिवर्सिटी के 42 डिपार्टमेंट थे। तो 42 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट का मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया, मुराद सईद भाई ने बनाया, और वहां से जो है बाकायदा आगाज किया। फिर मैं पेशावर यूनिवर्सिटी का चेयरमैन बना, फिर कैंपस का प्रेसिडेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट इलेक्शन मैंने जीता इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का, फिर सूबाई सदर का इलेक्शन मैंने जीता इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का, और उसके बाद जो है इंसाफ यूथ विंग का रीजनल प्रेसिडेंट बना, फिर सूबाई सदर बना इंसाफ यूथ विंग का। और 2024 में टिकट मिला, MPA बना पहली दफा, और स्ट्रगल जारी थी। तो अभी जो है बस आपके सामने हूँ।
So did it come as a surprise जब सीएम वाला ऐलान हुआ कि आप सीएम, मतलब कभी ऐसा था कि आप, मतलब इमरान खान जो आपको सीएम वो बना देंगे और कहेंगे जी पूरा सूबा, मतलब 42 डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट, और आप पंजाबी मिनिस्ट्री, साउथ मिनिस्ट्री, पूरा सूबा आपके पास है? नहीं, ये हकीकत ये है कि मुल्क का चौथा बड़ा ओहदा आपके पास। अच्छा, जब हम 2008 में, मैं सच्ची बात आपको बताऊं तो ये पार्लिमानी सियासत हमारे समझ में नहीं आती थी। हम तो इस निज़ाम के खिलाफ निकले थे कि मतलब इस निज़ाम जो फरसुदा निज़ाम और करप्ट निज़ाम है पाकिस्तान का, इसको हमने इंशाल्लाह बदलना है। और तब हम सोच भी नहीं सकते थे कि मिडिल क्लास बंदा जो है वो कभी MPA या MNA भी बन सकता है। लेकिन बहरहाल हमारी स्ट्रगल जो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इस निज़ाम को बदलने के लिए ही थी। और वरना 2018 में भी जो है हमने अप्लाई किया, 2018 में टिकट नहीं मिली, 2019 में अप्लाई किया, 2019 में नहीं मिली, 2021 में अप्लाई किया, 2021 में टिकट नहीं मिली। लेकिन हमारी जद्दोजहद इस टिकट के लिए थी नहीं, हमने अपना स्ट्रगल जारी रखा। 2014 में जब मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सूबाई सदर था, और एक वीडियो मेरे ख्याल में जो मैं खान साहब मुझे कुछ हिदायत दे रहे हैं, वो 14 अगस्त के 2014 के धरने से पहले 3-4 दिन के पहले की हैं। तो उस वक्त मैं ISF का सूबाई सदर था, तो हम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से तकरीबन 54,000 बंदा इस्लामाबाद के लिए लेकर आए थे 2014 में। और जो है फिर लॉकडाउन में, तो इन सब चीज़ों में जो है हम आगे रहे। तो खान साहब, जिस तरह मैंने कहा कि पहली स्पीच में कि हम एहतिजाजी सियासत के चैंपियन हैं, तो इन लोगों ने हमें जो है वो ट्रेन किया हुआ है इस सियासत का। और ये आंसू गैस और डंडे और ये रबड़ बुलेट्स ये 2014 से हम कर रहे हैं और अभी तक जो है काते रहे हैं। तो जब टीवी पर मैंने देखा कि मतलब मेरा नाम अनाउंस हुआ, खान साहब ने मेरा नाम लिया है, इससे पहले जो है मुझे पता नहीं था, और मैंने टीवी पर देखा। तो हाँ, पहले तो मुझे नहीं लगा, मैंने कहा शायद कोई ऐसी भी कह रहा हो। लेकिन बहरहाल फिर जब पार्टी ने अनाउंस किया कि हाँ खान साहब ने बोला है, तो मेरे लिए यही काफी था कि इमरान खान साहब ने मेरा नाम लिया। हम सोच रहे थे कि 2 साल हो गए, तो ऐसा ना हो 2 साल से ये हमें मिलने नहीं दे रहे, तो इमरान खान साहब से हमारा नाम ही ना भूल गया हो। लेकिन बहरहाल इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए जो है मेरा नाम लेना, तो जिम्मेदारी तो छोड़े, नाम लेना भी बड़ी बात थी मेरे लिए। सही। लेकिन सर भाई, इस नाम, इस कॉन्फिडेंस जो इमरान खान ने आप पे दिखाया है, और आपको पता है कि जो हमारे अपने जो इंसाफियंस हैं और ये सारे PTI का जो इतना बड़ा 99% ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, ये आपको अंदाजा होता है थोड़ा सा कि ये सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि इमरान खान को आपने रिहा कराना है? और काफी लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 27, ये जो 26 नवंबर से पहले कोई मूवमेंट होगी। इसका आपको कितना अंदाजा होता है कि कितने लोग आपकी तरफ देख रहे हैं? और इतना बड़ा काम, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत, मतलब बहुत मुश्किल काम भी है, लेकिन बिकॉज आपके पास जैसे एक बड़ा इमरान खान ने आप पे ट्रस्ट किया, तो ये आपको क्या लगता है कि हर रोज जैसे जैसे कितना टाइम आपको लोग देंगे इसमें कि भाई इमरान खान क्यों नहीं बाहर है? तो ये कितना टाइम आपको लगता है आपके पास है बिफोर पीपल स्टार्ट, बिफोर, जैसे इससे पहले के लोग आप पे भी तनकीद करने लगे हैं कि भाई अभी तक इमरान खान बाहर नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? तो ये इसका आपको क्या अंदाजा है? देखिए जी, सबसे पहले तो लोग इंटेंशंस देखते हैं, और पाकिस्तानी कौम जो है अभी बड़ी होशियार हो चुकी है, तो वो आपके जो है एक्टिविटीज देखते हैं, आपकी स्ट्रगल को देखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। तो जो ट्रस्ट का लेवल है, इंशाल्लाह वो मैं अपनी हद से ज्यादा कोशिश करूंगा कि जो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और जिनको उम्मीदें मुझसे वाबस्ता है, तो इंशाल्लाह ताला उनकी एतमाद को ठेस नहीं पहुंचेगा। मेरे ख्याल में ये कोई नहीं ठीक है। अच्छा, हाँ, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जो स्ट्रगल जारी है, तो ये जारी रहेगी। और बहुत जल्द टाइमलाइन मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने कोशिश जो है वो पहले दिन से शुरू की थी, और पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि हमारी कोशिश से किसी को मसला है, कोई जो है टेंशन में है,
कभी जो है FIR कर रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन जा रहा है, कभी जो है गलत वीडियोस बना रहा है और कभी डरा रहा है, धमका रहा है, तो उनको तकलीफ पहुंच रही है हमारे हर कदम से। और ये कदम जो है अभी मजीद इंशाल्लाह इसमें हम तेजी लाएंगे और ये कोशिश जारी रहेगी। और जब भी कोई फैसला आया पार्टी की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से, तो मैं कौम से ये वादा करता हूँ, पूरी कौम से ये वादा करता हूँ कि आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं करूंगा उसमें। और मेरे ख्याल में जो है उस पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि ये प्रेशर सिर्फ मुझ पे नहीं है, जो लोगों की उम्मीदें हम मुझसे वाबस्ता हैं, ये प्रेशर इमरान खान साहब ने एक ऐसा पता केला है कि ये बाकी पार्टियों के लिए भी मुश्किलात इसने पैदा कर दी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप मेहनत कर रहे हैं और आप वज़ीर आला बन सकते हैं, तो बाकी पार्टियों के लिए कड़ा इम्तिहान हो गया है कि मतलब आप जो है मोरिसी सियासत पाकिस्तान में खत्म होगी। जरूरी नहीं है कि आपके नाम के साथ जो है वो शरीफ हो, जरदारी हो, भुट्टो हो, तभी आप जो है प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला बन सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो इमरान खान साहब की वाहिद पार्टी है कि आपको मौका मिलेगा वज़ीर आला बनने का। तो अभी मेरे ख्याल में उनके अपने यूथ और अपने वर्कर जो मिडिल क्लास हैं और जो नौजवान हैं, यही डिमांड करेंगे कि कब तक हम आप लोगों की गुलामी करते रहेंगे। और उनके बड़े बड़े सियासतदान जो अपने आपको बड़े बड़े नाम कहते हैं, तो अभी भी वो जो है पैम्पर्स और डायपर्स उठाते हैं उन लोगों के। तो उनसे जो है वो अभी पूछेंगे, अभी सवाल करेंगे कि मतलब कब तक जो है हम आपके जूते पॉलिश करेंगे। अभी हमें भी मौका मिलना चाहिए और खानदानी सियासत खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक जो फॉलो अप क्वेश्चन सुहेल भाई इस पे आएगा ना, एक तो वो जो बात है कि आपने कहा कि जब इमरान खान साहब कॉल देंगे तो आप मायूस नहीं करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन से जब हम ये समझा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, तो एक काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि इमरान खान ने तो जैसे अलीमा खान साहबा ने तो ये भी कहा है कि इमरान खान तो अपनी रिहाई के लिए कभी कॉल नहीं देंगे, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मुल्क का जैसे कहते हैं ना कि मुल्क में जैसे इंसाफ और वो सब। तो इसका क्या जवाब अच्छा बनता है कि देखें वो अगर खुद कॉल नहीं देंगे तो फिर मैं एक और फॉलो अप क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ इस पे, थोड़ा सा शायद सख्त हो जाए, लेकिन देखें अगर केपी गवर्नमेंट के गवर्नेंस और ये सब कुछ, ये 2 साल कितने साल की जो गवर्नमेंट रह गई है वो हम कर लें और अच्छा हो जाए, ये पाकिस्तान के लिए मतलब सक्सेस है, या इमरान खान के बाहर आना सक्सेस है कि और ये लॉ, रूल ऑफ लॉ जो खत्म हो गया, आइन खत्म हो गया, इसको रिवर्स करना वो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खैबर की हुकूमत 4 साल और चले, ये सक्सेस है, और इमरान खान बाहर नहीं आता तो ये सक्सेस है हमारे लिए कि ये नाकामी, मतलब ये नाकामी होगी हम सब। इसमें जिब्रान भाई आप 2 बातें कर रहे हैं। पहली बात का जवाब मैं देता हूं और दूसरा भी बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब बेशक कॉल ना दे, हमारी पार्टी है जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल और इमरान खान की वजह से जो है सबसे कबूल तरीन और मकबूल तरीन जमात है। तो पार्टी की तंजीम है, पार्टी की जो पार्टी है वो देख रही हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमें जब लगेगा, क्योंकि इस दफा जो है हमने रिस्क नहीं लेना, इस दफा डू और डाई पोजीशन होगी। जब भी हम जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हमारा आईनी और कानूनी रास्ता है वो अपनाएंगे, एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का, लेकिन तरीके से जब भी मौका आया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा तीसरी दफा जो है वो इमरान खान साहब को वोट दे रहा है, और वहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत तीसरी दफा है। तो गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी जो है वो भी हमारा ऑप्शन है। डेवलपमेंट भी चलता रहेगा, गवर्नेंस भी वहाँ इंशाल्लाह ताला मजीद बेहतर होगी, सर्विस डिलीवरी भी देंगे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को। लेकिन ये हकीकत है कि हमारा जो पहला हदफ है वो हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब है, और उसकी रिहाई है। क्योंकि लोगों ने हमें वोट जो है वो सुहेल अफरीदी को नहीं दिया, लोगों ने वोट जो है इमरान खान साहब को दिया है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमने जो है वहां रोडें नहीं बनाई थी, ना ट्यूबवेल बनाए थे, ना लोगों को ट्रांसफार्मर दिए थे, लोगों ने हमें वोट दिया है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो वो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, और ये बाकी चीजें जो हैं वो डेवलपमेंट चलती जाएगी और गवर्नेंस होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। ओके, अच्छा जी जिब्रान।
जी, वो कल का इवेंट जो है नहीं, उससे पहले एक सवाल है जो बार बार दोबारा आ रहा है, मैं ये सवाल कर चुका हूँ, लेकिन अब जाहिर है ऑडियंस की तादाद बहुत ज्यादा है पहले से, तो वो दोबारा पूछना चाह रहे हैं कि आपको इस वक्त अडयाला के बाहर होना चाहिए था, आप अडयाला के बाहर क्यों नहीं है? बस ये प्लीज, आई नो यू हैव आंसर्ड ऑलरेडी, लेकिन ये हर जगह पर यही सब क्योंकि हम लाइव सोहेल भाई बता दूं, जिस वक्त आप आए थे ना, उसके मुकाबले में इस वक्त 3 गुना ज्यादा ऑडियंस उस वक्त से थी। अच्छा, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, इस तरह था कि मैंने आज पेशावर जाना था और वहां पर जो कल की एक्टिविटी है आप उसके लिए पेशावर में नहीं, आप इस्लामाबाद में, राइट? हाँ जी, मैं इस्लामाबाद में रुका इसलिए क्योंकि मैंने अगर मुझे क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन्होंने आज फिर नहीं मिलाना और मैंने फिर वहां जाना है, तो जिस तरह के उन्होंने नहीं मिलवाया इमरान खान साहब की बहनों को उनसे, तो जिस तरह मुझे पता लगा कि मतलब वो जो है धरने पर बैठ गई हैं, तो मैंने अपनी गाड़ियां तैयार की और मैं निकलने लगा था, तो बाहर तमाम रास्ते उन्होंने बंद कर दिए जो अडियाला जेल की तरफ जा रहे हैं। और एक और बात जो है हमें बताई गई और पीएमएल के लोगों ने जो है उसको ट्वीट भी किया, जो मतलब टाउट्स हैं जो बाकी लोग हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया कि वहां पर जो अडियाला पर हमला होने वाला है। तो हमें खदशा ये था कि वहां पर वो ऐसा ना हो कोई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें जिससे नुकसान हो। तो इस वजह से जो है वहां पर अडियाला जेल में जो लोग थे उनकी तरफ से और पार्टी की तरफ से मुझे रोका गया कि मतलब आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है सोहेल भाई, ये वाला क्वेश्चन अगेन बिकॉज आप इतना डायरेक्ट सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो अगला नेचुरल सा सवाल यही आएगा लोगों का कि फिर तो आप अगली बार भी कभी जाने का सोच रहे होंगे, तब भी यही वाला वो ड्रामा करेंगे, तो फिर आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये तो बेसिकली वो कभी भी कर सकते हैं कि भाई ये हमला और ये सारा फॉल्स फ्लैग और ये, तो मतलब फिर हमारा क्या? देखिए जिब्रान भाई, जब इमरान खान साहब जेल से बाहर थे तब जो है हम हर किस्म का रिस्क ले सकते थे और हमने लिया भी है, और हमने जो है तमाम एहतजाजों के अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट से लीड किया है। लेकिन अभी जो है इमरान खान साहब जेल में है और हमने जो है एक भरपूर एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है जो जिसका कोई रिजल्ट हो। अभी अगर फर्ज करें वहां पर जो है मुझे ये लग रहा होता कि मतलब वहां पर ये दोबारा कुछ करने लगे हैं तो मैं रिस्क ले भी लेता, चला भी जाता। लेकिन अभी जो है मेरे ख्याल में जब पार्टी की तरफ से, वहां के लोगों की तरफ से, अभी मैं वो नहीं बताता कि मतलब वहां पर किन किन लोगों ने जो है किस किस से बात की, उसमें शामिल उसमें हमारे जो है वो पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर वज़रा बैठे हुए हैं, एमएनएस बैठे हुए हैं, अगर फर्ज करें हमें लगे कि आपकी जरूरत है तो हम आपको बता देते हैं, आप पहुंच जाएं। तो फिर जो है अगर फर्ज करें फिर रिस्क लेना ही है और खामखा जो है मेरी जरूरत ही हो किसी जगह पर, तो ये बैरियर्स फिर मेरा ना रास्ता रोक सकते हैं और ना जो है इससे पहले रोका है। और 26 नवंबर को पूरी दुनिया ने देखा कि फिर ये तमाम बैरियर्स हम किस तरह हटाते हैं। और चल भाई, एक की बात करने से पहले और नवंबर 26 वापस जाने से पहले, अगर आप पूरा पाकिस्तान अगर आपको देख रहा है, और मुझे पता है इसकी क्लिप्स, ये जो आप अगली बात करने जाएंगे इसकी क्लिप्स भी बहुत बनेंगी और मे बी द मोस्ट वायरल स्टेटमेंट दैट कुड कम एट दिस टाइम। मैं चाहता हूं आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के कैमरे को देखें और उनको क्या यकीन दिला सकते हैं कि आप किस तरह इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे और क्या ये यकीन कैसे दिलाएंगे आप सबको? तो मैं आप पे पूरा जूम करते हैं, दिस इज ऑल यू और ये पाकिस्तान की आवाम, ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि एक जो ट्रस्ट होता है ना सोहेल भाई, बहुत कम लोगों पे लोग आजकल कर रहे हैं। आप वो शख्सियत हैं, बहुत लकी इंसान है कि पूरा पाकिस्तान, पूरा पीटीआई अगर किसी पे ट्रस्ट कर रहा है तो वो आप पे है, तो आप हैं और अवाम है। ओवर टू यू। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है और आप लोगों को जो मुझसे उम्मीदें हैं, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं और अपने रब से जो रब्बुल आलमीन है उसको हाजिर नाजिर जानकर आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर इंशाअल्लाह पूरा उतरूंगा। इमरान खान साहब ने जो एतमाद किया है उस एतमाद को मरते दम तक जो है ठेस नहीं पहुंचाऊंगा
اور آپ لوگوں نے یہ اطمینان بھی رکھنا ہے کہ میرا ہر قدم میں جو بھی کروں وہ صرف اور صرف میرے لیڈر کے لیے، میری پارٹی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ہوگا، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے. آپ لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارنا، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. آپ لوگوں نے مزید مجھے جس طرح پیار دیا ہے، جس طرح بھروسہ دیا ہے، جس طرح آپ میری طاقت بنے ہیں، اسی طرح میری طاقت بنے. انشاءاللہ تعالی یہ لوگ جو نیچ نیچ حرکتیں کر رہے ہیں میرے خلاف، تو یہ ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے مزید ڈرانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور وہ وقت قریب ہے، جلد ہی جو ہے آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. زیادہ دیر نہیں لگے گی اس تحریک کو کامیاب بنانے میں. تو وہ وقت جو ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا، اور اس دفعہ ہم جو پرامن احتجاج کریں گے اور پاکستان بھر میں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ فیصلہ کرے گا، اور ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہوگا. بس آپ لوگوں نے صرف میرا ساتھ دینا ہے. بہت بہت شکریہ سہیل بھائی. بہت ڈیفیکلٹ کوشچن تھا، اور میں پہلے تو آپ کو داد دوں گا، آپ نے کوئی بھی ایسا نہیں کہا ہمیں کہ یہ والا سوال نہیں کرنا ہے یا میں پھنس جاؤں گا، یہ والا بہت ہو گیا بھائی آگے بڑھیں. نہ کوئی آپ کے سائڈ میں کوئی آپ کا اسسٹنٹ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، نہ آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ ٹرانسپیرنسی ہے جو پی ٹی آئی میں ہی ہوتی ہے کہ عوام کے جتنے تلخ سے تلخ سوال ہیں اس کے آپ جواب دے رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. جبران بھائی، کل کے بارے میں ذرا میں جو تھا وہ میں ہوں، اور ایسا میں رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں اندر اور باہر ایک ہی ہوں. میں کمرے سے باہر اور کمرے کے اندر یہی ہوں انشاءاللہ تعالی، اور پوری قوم جو ہے اس پر اطمینان رکھے انشاءاللہ. بس کل کے بارے میں بتا دیں، حیات آباد کا تھوڑا سا. کل ہم نے اپنے تمام شہداء کو، اپنے جو 26 نومبر کے، 9 مئی کے، ہمارے جو 5 اکتوبر کے زخمی ہیں، جو شہداء ہیں، جو پرزنرز ہیں جن کو ناحق قید کیا گیا تھا، ان سب کو خراج تحسین پیش کریں گے. کل ان کو سلام پیش کریں گے پوری قوم کی طرف سے، اور وہاں پوری قوم ان کی احسان مند ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خاطر، پاکستانیوں کی خاطر یہ قربانی دی ہے. انشاءاللہ تعالی کل 5 بجے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس فٹ بال گراؤنڈ میں ایک تقریب ہونے جا رہی ہے. تمام پاکستانیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں، اور جو ہمارے شہداء کی فیملی ہے، جو ہمارے پرزنرز ہیں، جو ہمارے زخمی کارکنان ہیں، ان کا حوصلہ بنے اور اس میں شرکت کریں. شکریہ. اتنا زیادہ وقت دیا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور ہماری نیک دعائیں، تمنائیں. جبران آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو. ہاں، میں یہ چاہ رہا تھا، وہ جو ہماری ایک ویڈیو مونٹاج ہے وہ ہم اگر ساتھ دیکھ لیں تو بڑا ان کو، جو ساری کی ساری فیملیز ہیں، ان کو ٹریبیوٹ، ہمارا سلام ان تک پہنچنا چاہیے. یہ لائیو ٹرانسمیشن آئی تھنک سہیل بھائی جو نمبرز ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب لائیو ہوتے ہیں اس ٹائپ کے نمبرز ہیں. تو ہم ساتھ دیکھیں ان کو خراج تحسین پیش کریں. تیری مٹی میں مل جاواں گل بن. اچھا، یہ تو جیسے ڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں نا کہ آئی تھنک یہ تقریباً 20 کے انڈر یہ نمبر ہے. کافی ایک نمبر وہ بھی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کتنے سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے. اتنے سارے گن شاٹ وونڈز تھے. ہم نے 52 لوگوں کی، سہیل بھائی وہ ریسرچ کر کے وہ پتہ کروایا تھا کہ 52 لوگوں کے گن شاٹس تھے جو وہاں گئے تھے. تو اتنے اور بھی لوگ ہوں گے. تو بس ان کی فیملیز کے لیے سہیل بھائی ایک 2 لائنز کہتے ہیں، پھر ہم چلتے ہیں آگے. ان کی فیملیز کو یہی کہوں گا کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا ہے. انہوں نے
इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी की तहरीक में अपना लहू शामिल करके इसको जो है तक़वियत दी है और हमें हौसला दिया है, क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी ज़ात के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए, अपने लीडर जनाब इमरान खान साहब के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। तो इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हमारे बदन में सांस है, जब तक हमारे बदन में खून का आखिरी कतरा है, इंशाल्लाह ताला इनकी इस कुर्बानी को हमेशा याद भी रखेंगे और इसको ज़ाया भी होने नहीं देंगे। और हमारी ये कोशिश उनके खून के साथ साथ हमेशा जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला, और अपने जान से भी दरेग नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस हकीकी आज़ादी को आखिरी हद तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। सुहेल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर टुमारो, गुड लक ओवरऑल। हम चाहते हैं कि आपने जैसे कहा कि मैं जैसे कमरे के अंदर हूँ वैसे कमरे के बाहर हूँ, हम चाहते हैं कि आप जब तक वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला ना भी रहें, कल को अल्लाह ताला आपको और कोई मकाम दे, यू ऑलवेज स्टे द सेम। और इंशाल्लाह हम बहुत उम्मीद करते हैं कि जल्द इमरान खान साहब हमारे साथ होंगे और हम जो है मिलकर उसको सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात मैं बता दूं, आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं, सही है, ये यकीन रखें कि काफी लोग प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन दुआएं भी बहुत करते हैं, तो मैं चाहता था वो तर्क सवालों के साथ दुआएं भी पहुंचाऊं। शुक्रिया बहुत।